for the session. Okay, everyone. Okay, so I think in the last session we started with the kernel. Okay, and we have just gone through the simple architecture and the layered architecture in the previous sessions. Okay. Huh. So when we talk about the structures of operating system, so we have these four operating system structures, okay, and these two structure comes as normal, but the two structure come as the part of the kernel also, the types of kernel also. As I told you that we have different types of kernels also. तो कर्नल्स में हमारे पास में 5 अलग-अलग तरह के कर्नल्स हैं, ओके, एंड आउट ऑफ दीज 5 कर्नल्स द 2 आर वेरी कॉमन व्हिच इज मोनोलिथिक कर्नल एंड माइक्रो कर्नल, ओके, so they are the type of kernel also and the type of operating system structure also, मतलब कि वो दोनों आपके इसमें भी आते हैं उसमें भी आते हैं, ठीक है। सो आपने यहाँ पर देखा होगा तो सिंपल स्ट्रक्चर, लेयर्ड स्ट्रक्चर, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर एंड माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर। और जब व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ कर्नल तो उसमें भी मोनोलिथिक कर्नल आता है एंड माइक्रो कर्नल आता है, ठीक है। So after that we started with the simple architecture and we came to know that in simple architecture we have no complexity but the direct connection of application programs with the device driver. मतलब यहाँ पर कुछ ज्यादा मॉड्यूल्स नहीं है, मॉड्यूलराइजेशन कॉन्सेप्ट नहीं है, okay. After that layered structure came into existence and it was having number of layers, okay, starting from layer 0, that is the computer hardware. After that layer 1, layer 2, layer 3, layer 4 depend on the operating system. As I told you, as I mentioned that it is depend on the operating system. At layer n-1 we have application program. It means our applications are running at that level, and at layer n this is basically a user interface layer where the user is actually using your application program, okay. So layer n is nothing but the user interface layer where the user is actually using your application. My application is my Microsoft PowerPoint, okay. I'm using it by these menus, okay, by these buttons, by these slides, by this particular mouse में जो उसका cursor उसके through में I can select this one, I can select this text also, okay. So I'm interacting with this particular application program. So this is my basically user interface layer. उसके बाद में वी स्टार्ट विद द कर्नल। कर्नल को हम लोगों ने देखा, कर्नल द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द ओनियन इज कॉल्ड एज कर्नल इन जनरल, ओके, वहीं से नाम इसका आया है कर्नल का। एंड इट इज द इनर मोस्ट पार्ट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और आपने देखा होगा अगर आप लोग अगर आप लोगों ने विटनेस किया है तो जो इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द ओनियन होता है वो काफी मतलब टेस्टी भी होता है। पीपल यूज टू ईट दैट इनर पार्ट, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा लगता है लोग, तो बिकॉज वो इम्पोर्टेंट है। तो वही थोड़ी सी सिमिलैरिटी यहाँ पर है। तो और उसके बाद में मैंने आपको बताया कि जो कर्नल है, कर्नल को जो कवर किया हुआ जो पार्ट है दैट पार्ट इज नथिंग बट द शेल, ओके। तो शेल हमेशा कर्नल के ऊपर को कवर करेगा, मतलब कर्नल को कवर करने के लिए शेल है हमारे पास। उसके बाद में kernel is a core component, okay, and using IPC, that is inter process communication. When two or more processes are running at the same time, then if they wants to communicate with each other, then using IPC they can communicate, okay. We use system calls also, ठीक है। system calls के बारे में आपको बताऊंगा मैं। तो system call भी use होता है in order to pass the data, in order to communicate, in order to message some of the commands. Okay, so when OS is loaded into the memory, kernel load first, हमेशा kernel पहले आता है फिर सारी चीजें आती है। और जब जब शट डाउन करते हैं तो पूरी चीजें पहले जाती है, बाद में फिर kernel जाता है, ठीक है। मतलब will come first and then will go last, okay. It has complete control over the system, ये भी हम लोगों ने देखा। then बाद में kernel is responsible for these many tasks we have already mentioned। process को manage कर रहा है for application execution। जब आपकी application when they execute, when all these application get executed, then उनके जो process होते हैं उनको manage करने का काम भी kernel करता है। उनको memory allocation और deallocation का काम भी
आपका कर्नल करता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करने वाला भी कर्नल है। हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर का जो एकदम पार्ट है कर्नल, जो कि इसको हम लोग बोलेंगे वेरी कोर कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यही सब काम करता है। सिस्टम कॉल को कंट्रोल करता है, ठीक है। when we want to perform something, so we cannot say directly, your operating system cannot say to the hardware really, ए भैया हार्ड डिस्क भाई जरा ये फाइल निकाल के दो, ठीक है, ऐसा तो है नहीं। ऑब्वियसली वहां पर कुछ सिस्टम कॉल्स काम करते हैं, ठीक है। वो सिस्टम कॉल की मदद से ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका कर्नल क्या करता है, सबको कमांड दे पाता है। वो सिस्टम कॉल के बारे में हम लोग केस स्टडी भी हमारी बाकी है, वो हम लोग थियरी में करेंगे। ओके। उसके बाद में फिर हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ कर्नल, मोनोलिथिक, माइक्रो कर्नल। तो अब आते हैं हम लोग मोनोलिथिक पर, ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट में करेंगे नहीं। इसमें आपको मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रखा हूँ, यहाँ पर डायग्राम्स है, डायग्राम से भी आप लोग आराम से समझ जाएंगे। ओके, starting with the monolithic kernel. Okay, as I told you that monolithic and micro kernel, these two topics comes under two different main topics. Okay, they comes into the operating system structure also, and these two subtopic comes under the types of kernel also. ठीक है, तो दोनों टॉपिक्स के अंदर ये दो टॉपिक्स आते हैं, जो दो यहाँ पर भी है, यहाँ पर। ओके, सो मोनोलिथिक कर्नल, monolithic kernel, as the name suggests, as I told you that mono means everything we will put together into a single unit. Okay, so whatever modules you have decided to put in the operating system, all those modules will be put together into a, बोलते हैं ना, एक झोला ले लो, एक झोले में सारी चीजें डालो, ठीक है, और आप उसको बांधो, तो ये आपका हो गया मोनोलिथिक, ठीक है। सो यू हैव एवरीथिंग, whatever things you have, whatever functionalities, modules you have decided to put into the operating system, so that we have put into a single unit. तो सब कुछ एक जगह पर है। देखो ये इंपॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि हमने फिर इस ड्रॉबैक को हम लोग ने रिजॉल्व किया है माइक्रो कर्नल, वहां पर हम लोगों ने ऐसे नहीं किया है, ठीक है, मैं आप लोग को बताऊंगा। सो एवरीथिंग पुट टुगेदर इनटू द सिंगल यूनिट, एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम इज इन कर्नल स्पेस। एक्चुअली लॉजिकली देखा जाए तो हमारे पास में दो स्पेसेस होते हैं या दो मोड होते हैं, या तो आप उसको स्पेस बोलो या तो मोड बोलो, ठीक है। तो आगे चल के आपको उसका आइडिया और क्लियर होगा। एक होता है यूजर मोड और एक होता है कर्नल मोड, ठीक है। तो यूजर के लेवल के जो काम होते हैं वो यूजर लेवल, यूजर स्पेस में होते हैं या यूजर मोड में होते हैं। ओके, एंड द फंक्शनैलिटीज और द थिंग विच आर इन द कर्नल मोड, ओके, जो कर्नल मोड में होते हैं, जो थोड़े से हाई प्रिविलेज वाले टास्क होते हैं। अब जैसे कि सिस्टम को लोड करना है, सिस्टम को फॉर एग्जांपल अभी मैंने क्या एप्लीकेशन ओपन किया, मैंने वीएलसी प्लेयर ओपन किया, तो वीएलसी प्लेयर जैसे मैंने ओपन किया तो इसको कितनी मेमोरी देने की है, रैम में कहाँ ला के रखना है, ये सब मैं डिसाइड करूंगा? यूजर लेवल पे होगा डिसाइड? नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? आपका कर्नल डिसाइड करेगा। अच्छा भाई, यूजर को वीएलसी प्लेयर ऑन करना है, ओके, तो एक काम करो, वो जगह पे इसको दब के अलॉट करो, तो फिर वो जगह पे इसको अलॉट करेंगे और वो वहां पे ओपन होगा, फिर आपको ओपन होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ काम होते हैं, कुछ टास्क होते हैं which comes under, which comes as a user privilege, which perform or which is done at the user mode, which is done in the user mode और user space। ओके, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो कर्नल या सर्वर लेवल या हाई प्रिविलेज वाले काम होते हैं, which cannot be performed by a user. So those tasks are being done at the kernel mode or we can say kernel space. तो वो दो चीजों आप लोग को डायग्राम में मैं बताऊंगा कैसे कैसे होती है। वो डायग्राम में यहाँ पर जो आप लाइनिंग देख रहे हो, यहाँ पर लाइनिंग, ये लाइनिंग के ऊपर का जो भाग है, that is the user space, because all the application programs are running at that mode, ठीक है। उस स्पेस में, उस जगह पर सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम रन होती हुई नजर आ रही है, तो वहां पर यूजर का लेना देना, यूजर उनसे क्या करेगा, उनसे इंटरेक्ट करेगा, लेना देना जो उसका है। बट जो नीचे जो पार्ट है, जो नीचे भाग है, वो है कर्नल स्पेस। ओके, वहां पर सारी सर्विसेज है, लाइक देखो सीपीयू सर्विस, नेटवर्क सर्विस, मेमोरी, डिस्क,
तो ये सारी सर्विसेज बड़ी हाई प्रिविलेज सर्विसेज होती है, ठीक है। तो वी कैन नॉट अलाउ अ यूजर टू डू समथिंग इन दैट पर्टिकुलर स्पेस, ओके। सो दैट इज कॉल्ड एज कर्नल स्पेस, एंड जो ऊपर का भाग है उसको बोलते हैं यूजर स्पेस, ओके। वापस आते हैं हम लोग। It contains all the services like process management, file management, scheduler, virtual memory in kernel space, as I told you, ठीक है। ये सब काम हाई प्रिविलेज वाले काम है। We cannot give this particular thing to the user space। तो यूजर उसके साथ में छेड़छाड़ कुछ कर ले, किसको क्या देना, कितना देना, कैसा देना, कब देना, ठीक है। तो यूजर कैन नॉट बी एक्टिव, मतलब यूजर लेवल के ऊपर ये सारी चीजें हम लोग नहीं रख सकते, ठीक है। सो इट कंटेन ऑल द सर्विसेज लाइक प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस को मैनेज करना, फाइलों को मैनेज करना, प्रोसेस अगर आते हैं एग्जीक्यूशन के लिए तो उनको शेड्यूल करना, वो होता है शेड्यूलर। एंड वर्चुअल मेमोरी किसको देना, कितनी देना, कहाँ देना, ये सारी चीजें आपको कर्नल स्पेस में रखनी, ओके। Monolithic kernel is one single program. Monolithic kernel is one single program that contains all of the code necessary to perform every kernel related task. कुछ भी काम करना है तो हमारा मतलब ये एक ही हमारा है ना। यू कैन जस्ट इमेजिन, यू कैन जस्ट कंसिडर दिस पर्टिकुलर मोनोलिथिक कर्नल एज अ सिंगल प्रोग्राम। यू कैन कंसिडर इट एज अ सिंगल प्रोग्राम। देखो हम लोगों ने लेयर्ड में क्या हम लोगों ने क्या देखा, लेयर में देखा हम लोगों ने कि यहाँ पर चीजें मॉड्यूलराइज्ड है, ठीक है। मतलब कि जो सर्विसेज को कॉल करे वही सर्विसेज आ रही है, या जो लेयर पे हम लोग काम कर रहे हैं वही लेयर आपकी एक्टिव है, और अगर उनका इंटरवेंशन है तो ही वो आपको काम करेंगे। यहाँ पर आपका अगर कभी एक सिंगल टास्क भी देखो, मतलब जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड मोनोलिथिक कर्नल। वो ये है कि आपको अगर कभी एक छोटा सा राइट क्लिक भी करना है ना, तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। जब पूरा सिस्टम एक्टिव हो जाएगा तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्लो रहेगा या फास्ट रहेगा, जल्दी बताओ मुझे, अरे बोलो जल्दी। हो जाएगा ना सर। स्लो, स्लो रहेगा। क्यों स्लो रहेगा? बिकॉज यू हैव पुट एवरीथिंग इनटू अ सिंगल यूनिट, यू हैव पुट एवरीथिंग इनटू अ सिंगल यूनिट। सो इवन फॉर परफॉर्मिंग अ सिंगल क्लिक, even for performing a single task or a very simple task, the whole system will get activated। या पूरा सिस्टम एक्टिवेट तो फिर जाहिर ही बात है आपका सिस्टम स्लो होने वाला। अब अगर उसी में आपने अगर कभी एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिए, और अगर आपने वीएलसी प्लेयर भी ओपन कर लिए, माई कंप्यूटर ओपन कर लिए, एमएस ऑफिस ओपन कर लिए, इतनी सारी चीजें ओपन कर लो, तो फिर आपका सिस्टम तो स्लो होना ही, ठीक है। देखो इसके लिए मैं आपको बताया था कि जहां पे मेन फोकस है वो ये था कि आपका मोनोलिथिक कर्नल क्या है, माइक्रो कर्नल से जो हम लोग आगे पढ़ने वाले इससे स्लो है। बिकॉज यहाँ पर हम लोग ने ये गलती की थी कि सारी चीजें उठा के एक जगह पे रख, ठीक है। तो सारी सर्विसेज तो है हमारे पास में, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, शेड्यूलर, वर्चुअल मेमोरी, एवरीथिंग वी हैव, ओके। बट द प्रॉब्लम इज दैट even for a simple task, complete the whole system gets activated, and it slows the system, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वर्क आर डन वाया सिस्टम कॉल, ये तो हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं। आगे पढ़ते हैं कुछ और इसमें। हाई प्रिविलेजेस, मोनोलिथिक कर्नल, हाई प्रिविलेजेस, हाई प्रिविलेज्ड, इसके अंदर जो टास्क होते हैं हमारे यहाँ पर जो होते हैं, देखो आपको मैं डायग्राम में बता दूं। यहाँ पर जो हमारे टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पर उसने खाली इतना बताया कि एप्लीकेशन आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है, अपाची सर्विस है, मोजिला आपका ब्राउजर है, ये भी मतलब कुछ ना कुछ सर्विसेज, कुछ ना कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू रन हो रही है, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस, ठीक है, हाई परफॉर्मेंस आपका मोनोलिथिक कर्नल है, क्योंकि यहाँ पर आपने जहां पर वो चीज आपकी एडवांटेजेस में आ रही है वही चीजें आपकी डिसएडवांटेज में भी जाएंगी, दोनों दोनों आपको उसके अंदर फेस करना पड़ेगा। इट इज लार्जर देन माइक्रो कर्नल। मेरे पास में एक डायग्राम है, मैं आपको डायग्राम बता दूं तो शायद आप लोग थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। कहाँ पर गया ये, मैंने एक बुक का कटिंग निकाला हूँ। इज इट विजिबल? कोई यस बताओ। सर। यस सर। ओके, तो हाँ, क्वेश्चन एग्जाम में आया है, हाइड फ्लोटिंग मीटिंग कंट्रोल।
एग्जाम में कुछ काफी दफा क्वेश्चन आया है, द डिफरेंस बिटवीन, एटलीस्ट वी मस्ट नो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो कर्नल एंड मोनोलिथिक कर्नल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है ना, तो लार्जर है माइक्रो कर्नल, ये यहाँ पर ये कैसे किया है इसमें, एक सेकेंड, ये कुछ तो गलती हुई है, मैं पहले इसको ऐड नहीं कर रहा था लेकिन फिर मैंने ऐड कर लिया। एक काम करो हम लोग अभी इसको, क्योंकि अक्सर ऐसी बुक से निकाले हुए कटिंग्स वगैरह ये इसके अंदर काफी सारी एरर्स होती है, हम लोग अपनी यहीं से पढ़ते हैं, पापा जाने दो। हाँ, तो डायग्राम पे आते हैं। डायग्राम में देखो आपके पास दो डायग्राम, ठीक है। मैंने एक डायग्राम खुद से बनाया हूँ और एक डायग्राम मैंने बुक से निकाला हूँ। कौन सी बुक से? मैं आपको बुक, ऑपरेटिंग सिस्टम उदित अग्रवाल, ये बुक मैंने लास्ट टाइम रिफर किया था। दिस इज वेरी वेरी गुड बुक, और इसके अंदर से आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। काफी सारी के ऑलमोस्ट कंप्लीट इसके अंदर है, उदित अग्रवाल करके है, ठीक है, उदित अग्रवाल, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बुक है, इसमें से मैंने फोटो निकाला, तो जो भी फोटो बताया मैंने वो इसमें से नहीं था, वो कहीं और से था, इसके लिए मैंने उसको हटा दिया, ठीक है। उसमें उसमें हम लोग कंफ्यूज नहीं होने। तो यहाँ पर देखो, ये आपका यूजर स्पेस है, यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है यूजर स्पेस, एंड दिस इज द दिस इज योर कर्नल स्पेस, ठीक है। ये जो कर्नल स्पेस है आपका, यहाँ पर आपके पास में बहुत सारी सर्विसेज है, लाइक नेटवर्किंग सर्विस है, आपकी शेड्यूलिंग सर्विस है, सिक्योरिटी सर्विस है, वर्चुअल मेमोरी प्रोवाइड करने की वाली सर्विस है, फाइल सिस्टम, देन आईपीसी दैट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है। तो ऑल दीज हाई प्रिविलेजेस सर्विसेज आर बीइंग एग्जीक्यूटेड एट द कर्नल स्पेस। तो ये आपको इस पूरे प्रोसेस, देखो इसमें है कुछ भी नहीं, सिंपल डायग्राम के थ्रू आपको ये बताए खाली, और उसको सिंपल करेंगे ना तो आपको ये डायग्राम मिलेगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम, दिस इज वेरी वेरी सिंपल डायग्राम, ठीक है। यू हैव टोटल 3 लेयर्स, ओके। दिस इज लोअर इज द हार्डवेयर लेवल, एज वी नो कि ये हमारा हार्डवेयर लेवल है, ठीक है, हार्डवेयर लेयर है, ठीक है, वेयर कंप्लीट हार्डवेयर इज सिचुएटेड। After that we have so many services, okay, and all these services are being used, okay, are being used by the user with the help of any kind of application, ठीक है। अब मेरे पास में अपाची सर्विस रन हो रही है, वेब सर्वर है, ठीक है। तो वेब सर्वर को मैं भी कैसे यूज कर रहा हूँ, तो कुछ उसके लिए, इसके लिए कुछ ना कुछ एप्लीकेशन होना चाहिए, एज यू नो हम लोग उसको ब्राउजर में रन करते हैं, तो ब्राउजर में रन करते हैं। माई एसक्यूएल है, तो माई एसक्यूएल को हम लोग एप्लीकेशन के थ्रू रन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, टेबल्स क्रिएट करते हैं, ऑल दैट, ठीक है। तो ये छोटा सा उसका कॉम्पैक्ट डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सारे मॉड्यूल्स, कुछ दो चार जो कंप्लीट मॉड्यूल्स कंप्लीट कभी भी नहीं दिखा सकते, बिकॉज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा बन जाएगा नहीं तो, ठीक है। तो कुछ सर्विसेज कुछ मॉड्यूल्स दिखा के आपको संतुष्ट करते हैं, ठीक है। सो दीज आर फ्यू ऑफ द मॉड्यूल्स विच आर रिलेटेड, विच आर देयर इन द कर्नल स्पेस, and these are the services which are related to these modules, okay, like CPU scheduling वगैरह वगैरह। एंड दिस इज द अपर लेयर, इज द जहाँ से हम लोग लाइन खींचे, ये हमारा यूजर स्पेस है, ठीक है। तो इट इज बिन डिवाइडेड इनटू यूजर स्पेस एंड कर्नल स्पेस, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मोनोलिथिक कर्नल के कुछ एडवांटेजेस, कुछ डिसएडवांटेजेस हम लोगों ने इसके अंदर, यहाँ पर भी वही है, सिंपल टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट, पहला इसका एडवांटेजेस है, ठीक है। सिंपल टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट इसके लिए है कि बिकॉज यहाँ पर कोई आपको मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी इन द सेंस नहीं है कि यहाँ पर आपके पास में एक सिंगल कंपोनेंट है, मतलब सिंगल प्रोग्राम है, द होल सिस्टम इज वर्किंग एज अ सिंगल प्रोग्राम, ठीक है। तो सिंपल टू डिजाइन, देखो अब देखो भाई ऐसा है कि आपको अगर एडवांटेजेस बताने ही हैं तो एडवांटेजेस फिर आप कहीं ना कहीं से निकाल के कुछ ना कुछ छोटे छोटे एडवांटेजेस को भी आप लोग बता सकते हैं, और अगर किसी की बुराई करनी है तो वो भी आप लोग कहीं ना कहीं से निकाल के लाके बता ही देंगे, ठीक है। तो ये बुक वाले एकदम चालू है, तो इन लोग कहीं ना कहीं से निकाल के लेकर ही आते हैं, तो वही मैंने निकाला हूँ। फास्टर एज लेस सॉफ्टवेयर इज इन्वॉल्व, अब जब हमारे मोनोलिथिक की बात चल रही है और वो भी एडवांटेजेस की बात चल रही है, तो चलो ये भी है कि थोड़ा सा फास्टर है, एज लेस सॉफ्टवेयर इज इन्वॉल्व, इसके लिए फास्टर है, बट यू कैन नॉट अफोर्ड फॉर मोर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन, लाइक मैंने आपको एग्जांपल दिया। स्मॉलर एज सिंगल पीस है, इसके लिए स्मॉल है। लेस कोड है, फ्यूअर बग्स,
तो लेस कोड है तो फीवर बग्स, और फीवर बग्स है तो लेस सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। तो ये हम लोग एडवांटेजेस में डाल सकते हैं। कैन बी एक्सपांडेड वाया मॉड्यूलर सिस्टम, देखो ये लेकिन यहाँ पर फिट नहीं होता है, ठीक है। इसको एनहांस करना, इसको एक्सपांड करना इज क्वाइट ट्रिकी, बिकॉज ये पूरा का पूरा आपका कंप्लीट सिस्टम है। तो एक पूरे कंप्लीट सिस्टम को एक्सपांड करने के लिए हर एक चीज को एक्सपांड करना होता है, ठीक है। और अगर मॉड्यूलराइज सिस्टम होता तो एक मॉड्यूल अटैच कर देते, दूसरा मॉड्यूल अटैच कर देते एंड सो ऑन, तो वो हमारा काम वहाँ पे ज्यादा सिंपल होता। तो इसको हम लोग ज्यादा नहीं एंटरटेन कर सकते। उसके डिसएडवांटेजेस में, व्हेन बग सर्फेसेस रिफेक्ट रीचेस, ये क्या है, इफेक्ट रीचेस टू कंप्लीट कोड, ये हाँ, इफेक्ट रीचेस कहीं का कहीं आ जाए, इफेक्ट रीचेस टू कंप्लीट कोड। तो भाई साहब अगर आपका पूरा सिंगल यूनिट है, कहीं पर एक जगह भी अगर वायरस घुसा तो असर तो सब पे होना है, ठीक है, पूरे सिस्टम पे होना है। और वहीं अगर आपका मॉड्यूलर सिस्टम रहता, किसी एक मॉड्यूल में घुसता, वो मॉड्यूल को आप लोग क्या कर दो, रेक्टिफाई कर दो, बाकी सारे मॉड्यूल्स तो आपके सेफ हैं। तो ये उसके डिसएडवांटेजेस भी आ सकते हैं। चेंजेस इन वन मॉड्यूल्स में रिजल्ट ओएस क्रैश, अगर आपने कुछ चेंजेस करते हैं तो पूरा सिस्टम आपको डाउन करना पड़ेगा। देखो, जैसे कि अगर कभी अगर मॉड्यूलराइज सिस्टम होता और किसी एक में चेंजेस आते हैं उसमें करते बाकी तो आपके काम करते ना। ये होता है सेंट्रलाइज सिस्टम का और डिसेंट्रलाइज सिस्टम का, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ठीक है। तो सेंट्रलाइज सिस्टम जो होते हैं तो उसके अंदर इफ यू वांट टू मेक सम चेंजेस इन दी centralized system, then the whole system has to be down for few time, okay, for few minutes or few hours and few days, whatever, जितना भी जैसा भी टास्क है। तो अगर पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम है तो आपको उसमें पूरा डिस्टर्ब होना पड़ेगा, और अगर मॉड्यूलराइज सिस्टम है तो किसी एक मॉड्यूल को डिस्टर्ब करके आप काम करेंगे, बाकी बाकी द रेस्ट आर वर्किंग फाइन, ठीक है। तो ये हम लोग डिसएडवांटेजेस डाल सकते हैं। सम ऑफ द एग्जांपल्स यू कैन से एमएस डॉस, यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज 95, विंडोज 98 आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोलिथिक कर्नल आर्किटेक्चर, ओके। साथ साथ में आपका माइक्रो कर्नल है, माइक्रो कर्नल के भी यहाँ पर देखो मैंने उसके कुछ आपको बोलूंगा मैं, उसका डायग्राम को मैंने सिंप्लीफाई किया हूँ। दिस इज द एक्चुअल डायग्राम फॉर माइक्रो कर्नल, एज यू कैन सी दिस इज द यूजर स्पेस, दिस इज द अगेन कर्नल स्पेस, ठीक है। इन यूजर स्पेस वी हैव अगेन फ्यू मॉड्यूल्स विच आर वर्किंग, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं माइक्रो कर्नल से। माइक्रो कर्नल भाई क्या बोलते हैं? Microkernel architecture is very different from monolithic. We also know only most fundamental tasks are performed, that is hardware, manage memory, message passing between the process. So important fundamental tasks यहाँ पर perform होते हैं. All other services are implemented in user space referred as a server. तो भाई साहब यहाँ पर आपके क्या हुआ है, देखो मेन डिफरेंस यहाँ पर क्या है मैं आपको बता दूं। द मेन डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो कर्नल एंड मोनोलिथिक कर्नल इज दैट कि माइक्रो कर्नल में आपका यहाँ पर टास्क को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यहाँ पर सारे के सारे टास्क जो है ना तो आपके यहीं पर परफॉर्म हो रहे हैं। कहाँ पर हो रहे परफॉर्म? कर्नल स्पेस में। ऊपर देखो, वापस से मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ जाएगा, ज्यादा इसके अंदर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बिकॉज अगर पूरा आर्किटेक्चर हम लोग देखने जाएंगे ना, और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बुक देखे या दूसरी कोई बुक रेफर करे तो आप उसके अंदर एक okay. हो सकता है if you refer any other book then you will find any other diagram which with some extension also, with some more modules, with some more sketches and all, okay। तो उससे आपको घबराना नहीं है। अगर आप ये डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे which I found as a simplest diagram for monolithic architecture, ओके। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आपको यूजर लेवल में, मतलब यूजर स्पेस में यू विल नॉट फाइंड services over there, okay। You will find all the services are being performed at the kernel space only, सारे के सारे कर्नल में हो रहे, सारे कर्नल में हो रहे हैं तो इम्पोर्टेंट तो है यहाँ पर। और यही आपका
यही आपका ये डायग्राम थोड़ा अगर आप लोग देखेंगे, in this diagram you will find some of the services are being performed at this user space also. ठीक है, कुछ यूजर स्पेस में परफॉर्म हो रही है और कुछ यहाँ पर कर्नल स्पेस में परफॉर्म हो रही है, मतलब यहाँ पर प्रॉपर्ली डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो डिवाइड करने का थोड़ा फायदा भी हुआ एक्चुअली। तो most microkernels use message passing to handle requests between two servers. Okay, when two services communicate, when two modules communicate with each other, they use message passing. Okay, अब आप बोलेंगे दो सर्विसेज कैसे इंटरेक्ट करेगी। देखो, नेटवर्किंग आपकी एक सर्विस है, ठीक है, और स्टोरेज भी आपकी एक सर्विस है, ठीक है, या सिक्योरिटी भी आपकी एक सर्विस है। अब आपको क्या करना है, एक फाइल आपके स्टोरेज से उठाना है और कहीं पर आपको भेजना है, यानी आपको नेटवर्क के थ्रू किसी को भेजना है। ठीक है, जब आप भेजोगे, जब वो फाइल को एक्सेस करोगे तो आपका फाइल वाला जो मॉड्यूल है वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो सर्विस एक्टिवेट होगी। ओके, और उसके बाद में जब आप नेटवर्क से मेल पर या ड्राइव पर किसी को भेजोगे तो आपका सिक्योरिटी सर्विस भी एक्टिवेट होंगी, आपकी नेटवर्किंग सर्विस भी एक्टिवेट होंगी। ठीक है, जब ये आपस में बात करेंगे तो कैसी बात करेंगे, इन लोग जब आपस में बात करेंगे दे विल कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ मैसेज पासिंग सिस्टम। इन द अर्लियर सेशन ऑल्सो आई मेंशन दैट the communication between two processes is done using IPC, that is inter process communication। आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है जिसको हम लोग बोलते हैं आईपीसी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, नॉट इंडियन पैनल कोड। ठीक है, तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के थ्रू दो प्रोसेस आपस में बात करते हैं। एग्जांपल, आपने माई कंप्यूटर ओपन किया, आपने वीएलसी प्लेयर ओपन किया। ठीक है, अब वीएलसी प्लेयर के अंदर आपने ओपन पे क्लिक, आपके पास में ऑप्शंस होते हैं ना ऊपर, if you want to open any video file then go to the open, then open file, then आपको वो हार्ड डिस्क से कोई फाइल आपको अगर सेलेक्ट करनी है तो वो एक आपको फाइल मतलब के प्रॉम्प्ट करेगा कि फाइल कौन सी फाइल आपको ओपन करनी है, जस्ट ओपन दैट फाइल। तो यू गो टू द ओपन ऑप्शन एंड देन इट विल prompt you for the file, you go to the D drive, E drive, C drive, whatever, wherever your that media file is present, you go to that location and click on that particular media file। ठीक है, तो what you have done, आप एक एप्लीकेशन पे थे, कौन सी एप्लीकेशन पे, वीएलसी प्लेयर पे थे। ठीक है, वीएलसी प्लेयर पे आने के बाद में आपने क्या किया, आपने हार्ड डिस्क को भी एक्सेस किया वहां से, और हार्ड डिस्क में प्रेजेंट एक वीडियो फाइल को आपने प्ले किया। ठीक है, अब बोलो, वीएलसी प्लेयर का एक प्रोसेस, माई कंप्यूटर का यानी आपका जो फाइल एक्सप्लोरर है उसका एक अलग प्रोसेस, इन दोनों के बीच में कैसे बात हो, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे हो, that communication can be done with the help of IPC, that is inter process communication। ओके, तो वो हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको जस्ट थोड़ा सा आइडिया देने के लिए मैंने ये एग्जांपल दिया। ठीक है, सो वी हैव आईपीसी एंड मैसेज पासिंग। IPC is the one from which we can communicate, the two processes can communicate with each other। मैं कहाँ जा रहा हूँ, उसके बाद में फिर आपका मैसेज पासिंग सिस्टम है। आई टोल्ड यू, व्हेन टू सर्वर्स कम्युनिकेट, व्हेन टू सर्विसेज कम्युनिकेट, सर्वर्स क्या करते हैं, मेन आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो दो सर्विसेज के बीच में जब कम्युनिकेशन होगा तो वो कम्युनिकेशन आपका मैसेज पासिंग के थ्रू होगा। ठीक है, ये दो चीज आप याद में रखो। देखो यहाँ पर कितनी इसने अच्छी बात लिखा है, सेपरेट कर्नल एंड यूजर स्पेस इज प्रोवाइडेड। वहां पर भी था लेकिन उतना कुछ ज्यादा मतलब उसको हाईलाइट नहीं किए थे, बट यहाँ पर उसको हाईलाइट कर रहे हैं कि वी आर हैविंग सेपरेट यूजर एंड कर्नल स्पेस। ओके, वेयर द यूजर लेवल टास्क विल बी डन एट द यूजर स्पेस और यूजर मोड, और कर्नल स्पेस के अंदर, कर्नल मोड के अंदर आपके वो वाले टास्क एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है size is smaller, as we are having, we have divided the things into the modules and services, so यहाँ पर size smaller है, जो required है आपको वही आप लोग अंदर लाके इसको यूज करें। स्लो एग्जीक्यूशन यहाँ पर देखो, दोनों टर्म में, वहां पर था फास्ट एग्जीक्यूशन, यहाँ पर था स्लो एग्जीक्यूशन। हालांकि हम लोगों ने जो वो किया, ऑब्जर्व किया, हम लोग ने जो बात हम लोग ने नोट डाउन किए, इट वाज लाइक कि भाई जब पूरा सिस्टम है
तो पूरा सिस्टम जब आपका एग्जीक्यूट होगा तो ऑब्वियसली सिस्टम आपका स्लो हो जाएगा. इवन फॉर अ सिंगल टास्क योर होल सिस्टम इज वर्किंग, तो आपके जो एग्जीक्यूशन है वो स्लो हो जाएगा. बट दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एप्लीकेशन विच यू आर रनिंग. ठीक है, तो यहाँ पर उनका लिखना भी उसी कंसर्न में है कि डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ, मैंने यहाँ पर एकदम शॉर्ट शॉर्ट में लिखा हूँ, तो depend on, yeah, based on the type of application which you are executing in the operating system, so your execution is depend. Okay, execution depends on the type of application, like slow होगा या fast होगा उसके ऊपर depend है. तो कहीं पर किसके लिए कुछ है, किसके लिए कुछ है, but usually हमारे ideal values यही है. क्रैश इफेक्ट्स ऑन वर्किंग एनवायरनमेंट ओनली. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका मॉड्यूलराइज्ड अगर है तो उसके अंदर आपका जो अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, सो फॉर एग्जांपल आपका नेटवर्किंग से कुछ रिलेटेड है. ठीक है, तो नेटवर्किंग और फाइल सिस्टम वर वर्किंग टुगेदर. ठीक है, तो कुछ फाइल उठा के यहाँ से नेटवर्किंग के थ्रू हम लोग कुछ कहीं भेजना चाह रहे थे, तो ओनली दिस टू एनवायरनमेंट विल बी अफेक्टेड. ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये दोनों ही खाली इफेक्ट होंगे, बाकी लोग तो अपना काम कर सकते हैं. कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है तो अपना काम करते रहेगा, चलते रहेगा. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैंने एक ब्राउजर ओपन किया, मैंने अपने गूगल क्रोम ओपन किया और मैंने एक फाइल अटैच करके आप लोग को सेंड किया वाया मेल या वाया ड्राइव. ठीक है, साथ साथ में मेरा वीएलसी प्लेयर भी चल रहा था. यह बात को तो थोड़ा सा ध्यान दो. तो उसमें आपके दो सर्विसेज इन्वॉल्व हो गई, नेटवर्किंग सर्विस एंड फाइल सिस्टम सर्विस. अब दोनों इन्वॉल्व हो गई, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आया, तो जिसकी वजह से मेरी फाइल सेंड नहीं हो पाई, नेटवर्किंग और फाइल सिस्टम दोनों. तो क्या हो गया, मेरा जो ब्राउजर था, गूगल क्रोम था, वो अचानक बंद हो गया, क्लोज हो गया. बट साइड में मेरा वीएलसी प्लेयर चल रहा था, तो वीएलसी प्लेयर को मेरा कुछ धक्का भी नहीं लगा, वीएलसी प्लेयर मेरा चलते रहा. ठीक है, तो दिस इज एन एग्जांपल when something happens, well, some bad happens, okay, to any environment like networking, file system, या मेरा वीएलसी अगर मेरा क्लोज हो गया तो मेरे दूसरे सर्विस मेरे इफेक्ट नहीं होंगे. ठीक है, दैट आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन और से. ओके, so this is your microkernel architecture. Diagram is damn simple. You can see we have few services on the user space and few services at the kernel space. Okay, and we have modules which are working at the base like CPU, network, memory, disk. ये सब हमारे बेस मॉड्यूल्स हैं, तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे लिखना होगा. ठीक है, तो उसको हम लोगों ने सिंप्लीफाइड करके यहाँ पर भी मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हूँ. एप्लीकेशन टॉप पर, उसके बाद में आपकी ये मॉड्यूल्स है लाइक फाइल सर्वर, डिवाइस ड्राइवर, यूनिक्स सर्वर, लाइक एप्लीकेशन आईपीसी, एंड दे आर ये जो हमारे यूजर लेवल वो है सर्विसेज है, ये हमारे कर्नल लेवल सर्विसेज, ये हमारा हार्डवेयर है. सिंपल. ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद में रखना है हम लोग को. हाँ, यहाँ तक पहले जरा मैं रुक जाऊँ, क्लियर करूँ. यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है? ज़्यादा इसमें समझने वाली ऐसे कोई चीज़ है नहीं, मुझे ऐसा लगता है. और उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें ध्यान भी नहीं रखनी है, बस आपको एक बार डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, और कुछ बेस पॉइंट्स आप लोग को दिमाग में रखना है, बस इतना है. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोनोलिथिक कर्नल इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, मतलब एक्सटेंड हो सकता है लेकिन बहुत डिफिकल्ट है. माइक्रो कर्नल को इजीली हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, कभी कभी दोनों का डिफरेंस आता है. ठीक है, तो अभी एक बार मैं आप लोग को वो भी बता दूं, कहाँ पर था वो कटिंग पटिंग हमारी जो मैंने निकाला था, उसमें देखते हैं कहाँ तक सच है. साइज, माइक्रो कर्नल इज स्मॉलर इन साइज. माइक्रो कर्नल को बोल रहा है भाई स्मॉलर इन साइज है, ये लार्जर इन साइज है, बिकॉज एवरीथिंग यू हैव पुट टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट, तो वो आपको माइक्रो जो मोनोलिथिक कर्नल है आपका वो बड़ा है साइज में. स्लो एग्जीक्यूशन यहाँ पर बोल रहा है, फास्ट एग्जीक्यूशन यहाँ पर बोल रहा है, तो इट इज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ एप्लीकेशन यू आर रनिंग ऑन द सिस्टम. It is easily extendable. Microkernel is easily extendable, but it is hard to extend. मैंने बोला ना आपको कर सकते हैं लेकिन बहुत difficult है. If services crashes, it does not affect on working on the microkernel. तो भाई एक सर्विस क्रैश हुई, दूसरी सर्विस तो चालू है माइक्रोकर्नल में. But in monolithic kernel, if a service crashes, the whole system crashes in the monolithic kernel. तो मोनोलिथिक के अंदर इफ अ सिंगल सर्विस क्रैशेस, then your whole monolithic system or this architecture will get down. ठीक है,
and then code to write a microkernel, more code is required because you have multiple modules. Okay, or monolithic kernel to write a monolithic kernel, less code is required because you have everything in a single unit. So there's no need to write the code again and again for each and every services. Okay, so like आपका जो यहाँ पर है वो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है. Okay, इसको मैं क्लोज करता हूँ. विल कम बैक टू दिस स्लाइड अगेन. ओके, यहाँ तक फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी आस्क यू पीपल, यू हैव एनी डाउट? ओके, दोनों साथ में पूछता है, इसके लिए यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? इसमें इसमें देखो आपको सारी चीजें समझ में आना एक 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 टाइम पे आना बहुत मुश्किल है. ठीक है, तो अभी हो सकता है कुछ चीजें अभी समझ में आई हो, फिर हो सकता है आप एक बार आप जब रीड आउट करेंगे तो फिर चीजें समझ में आएंगी. ऐसा भी पॉसिबल है. ठीक है, बिकॉज एक बार में सारी चीजें पढ़ लेनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर अभी सारे टर्म्स आपके न्यू हैं, तो वो चीज भी है. कम ऑन रिस्पॉन्ड मी, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. So when we talk about, okay, when we talk about the next topic, that is system call. So this is the part of our practical also, as I mentioned in the first experiment that we have study of the system call in the first experiment. तो let me show you those, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आपको खाली याद रखना है चीजें. ठीक है, मैं आपको जरा फटाफट बता देता हूँ. सिस्टम कॉल, सबसे पहले सिस्टम कॉल प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू द सर्विसेज मेड अवेलेबल बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. तो यहाँ पर हमारे पास में एक, इससे पहले मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा. जैसे हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बोले, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इट एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर. ठीक है, इतनी बात याद है आप लोग को? योर ऑपरेटिंग सिस्टम इट एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन, ऑपरेटिंग सिस्टम इट एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर. यूजर एक छोर पर और हार्डवेयर आपका एक छोर पर, दोनों के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, अब और अंदर थोड़ा सा जाते हैं हम लोग. ठीक है, उसमें हमारे पास में होते हैं सिस्टम कॉल्स. ओके, नाउ दिस सिस्टम कॉल प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू द सर्विसेज मेड अवेलेबल बाय. अभी ऑपरेटिंग सिस्टम ने कुछ तो प्रोवाइड किया हम लोग को, सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं. ठीक है, और ये सर्विसेज को यूज करने के लिए हमें 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 क्या लगेंगे? सिस्टम कॉल लगेंगे. जैसे एग्जांपल, हमारे पास में आपका डिस्क मैनेजमेंट है. ओके, सो डिस्क मैनेजमेंट इज वन ऑफ द सर्विस. ओके, your hard disk is being managed by the disk services. Okay, and if I just want to open any media file, any text file which is placed on hard disk, okay, so what I have to use, I have to make use of the disk services. ठीक है, तो मुझे डिस्क सर्विस यूज करना पड़ेगी, तब जाकर मैं उस फाइल को एक्सेस कर पाऊंगा. अब मैं क्या उसको डायरेक्टली मैं एक्सेस करूंगा? कैसे मैं एक्सेस करूंगा? ऑब्वियसली मेरे पास में माउस है, तो मैं माउस के थ्रू मैं पहले नेविगेट करूंगा उस लोकेशन तक जहां पर मेरी फाइल है, और फिर उसको डबल क्लिक करके मैं ओपन करूँ. लेकिन जब मैं डबल क्लिक करूंगा तो वो सिस्टम को क्या बोलेंगे? सिस्टम को ऐसा कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, या फिर ऐसे ही बोल देगा, ये भाई देख, ये भाई साहब को चाहिए फाइल, अब आप जो है ना ओपन हो जाओ, खुल जा सिम सिम, तो वो ओपन हो जाएंगी. ऐसा कुछ है? नहीं, हम लोग को बोलना पड़ेगा, कुछ तो कमांड्स हम लोग को देना पड़ेगी. वो कमांड्स जो है वो इज नथिंग बट दी सिस्टम कॉल. वो कमांड ना, वो एक्चुअल में सिस्टम कॉल्स है. तो इन लोग भी आपस में जो बात करेंगे, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सर्विसेज से जो बात करेगा और हमको चीजें लाके प्रेजेंट करेगा, these are nothing but the system call. We are having different domains also, like if you are working, if you have a particular domain, like you are in the networking, or you are dealing with the memory management. So in memory management we have the different system call. If you are dealing with the processes, number of processes, then in order to manage the process we have different system call. Okay, so in each and every domain we have different system calls. Okay, and these system calls are working in order to provide the services to the user. ठीक है, वही वही जो सर्विस हम लोग चाह रहे हैं, यूज करना चाह रहे हैं, वो हम लोग को ऐसे प्रोवाइड होती है. ठीक है, तो मैं आप लोग को अभी लिस्ट बताता हूँ. These calls are generally written in C and C++. That's
one new information. Let's first use an example to illustrate how system calls are used. Writing a simple program to read data from one file and copy them to another file. तो सिंपल, अगर आप कभी ये वाला एक थोड़ा सा प्रॉब्लम डेफिनेशन अगर समझते हैं कि इफ यू वांट टू कॉपी द डेटा फ्रॉम वन फाइल टू अनदर फाइल, अगर आपको इतना काम करना है तो उसके अंदर भी सिस्टम कॉल यूज होगा। पता है आपको, आपके हर एक एक्टिविटी में सिस्टम कॉल यूज होते हैं, लेकिन हमको पता नहीं चलता बिकॉज हमारे पास में माउस है, हमारे पास में कीबोर्ड है, तो जस्ट हम लोग टाइप कर लेते हैं, माउस से क्लिक कर लेते हैं, एवरीथिंग जस्ट डन। ठीक है, तो ये सब होता कैसे है? बाय मीन्स ऑफ सिस्टम कॉल। The base definition for system call is that system call provide interface to the services made available by the operating system. तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जो सर्विसेज है, उन सर्विसेज को मैं यूज कर पाऊं, इसके लिए वो सिस्टम कॉल्स है। एग्जांपल देखेंगे तो और समझ में आएगा अभी अच्छे से। सिस्टम कॉल प्रोवाइड्स इंटरफेस बिटवीन द प्रोसेस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो थोड़ा सा और क्लियर हो रहा है, मैं आपको थोड़ा सा भी इसके थ्रू करके बताता हूँ। ठीक है, पेन के थ्रू। ठीक है, ये हमारा अभी अभी क्या बोले, प्रोसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये हमारे नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं। ठीक है, अब प्रोसेस कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास में नंबर ऑफ प्रोसेस है। ठीक है, दैट इज प्रोसेस P1, that is process P2, and this is my process P3. Okay, so I'm having these three processes which are executing right now in my system. ठीक है, अब now out of the context, you know, process 1 requires to open a file from hard disk. ये भाई साहब प्रोसेस 1 को मेरे हार्ड डिस्क में से, मेरे हार्ड डिस्क की जो मॉड्यूल है उसके अंदर से कोई एक तो फाइल उसको रीड करना है। ठीक है, जब वो रीड करेगा तो क्या ऐसी एक एरो मार्क मार के उसको बोल देगा कि भाई साहब मुझे वो फाइल दे दो जरा, मेरे को यूज करने, तो उसको मिल जाएंगी फाइल? नहीं मिलेंगी फाइल उसको, जब तक वो प्रॉपर कमांड के थ्रू, जब तक प्रॉपर एक कॉल के थ्रू उसको बोलेगा नहीं, तब तक के आपकी वो फाइल एक्सेस हो नहीं पाएंगी। सो वी कैन से your system call provides interface between the process and your operating system. तो ऑपरेटिंग सिस्टम इतना बड़ा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में आपकी ये सर्विस, आपके डिस्क मैनेजमेंट वाली सर्विस। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपका P2 चक्कर में है, चलो मैं दूसरा एग्जांपल लेके बताता हूँ। So you have another process which comes which has started the execution. Okay, now it needs some memory. Okay, it needs some memory because जब तक प्रोसेस स्टार्ट होगा नहीं आपका, जब तक कि उसको मेमोरी मिलेगी नहीं। ठीक है, तो तभी स्टार्ट होगा जब उसको आप लोग मेमोरी एलोकेट करोगे। ठीक है, सो प्रोसेस 2 वांट्स टू एग्जीक्यूट, सो इट नीड्स मेमोरी। अब इसको मेमोरी चाहिए तो ये ओएस को बोलेगा भाई साहब मुझे मेमोरी दे दो थोड़ी सी, मुझे एग्जीक्यूट होना है, ऐसा बोलेगा? नहीं, इट नीड सम सिस्टम कॉल। वो सिस्टम कॉल उसको लगेगा, वो सिस्टम कॉल के थ्रू वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कम्युनिकेट करेगा और बोलेगा कि भाई साहब ये सिस्टम कॉल देखो। वो सिस्टम कॉल के थ्रू मतलब आपको वो अपनी कोड लैंग्वेज में मांगेगा, और उसको मांगेगा तो वो उसको मेमोरी प्रोवाइड कर दे। ठीक है, सो इन दिस वे वी हैव इन ईच एंड एवरी डोमेन वी हैव डिफरेंट सिस्टम कॉल which are used in order to perform their task. Okay, तो वापस से बोल रहा हूँ मैं, प्रोसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में जो इंटरफेस है वो है सिस्टम कॉल। It allows the user level process to request services from the it allows the user level process it allows the user level process to request services from operating system। ये रहा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सिस्टम कॉल आपको क्या मदद करेंगे, आपके यूजर लेवल जो प्रोसेसेस है, ये P1 P2 P3, ये कौन से है, ये क्या है, ये प्रोसेसेस है। ठीक है, और ये वो प्रोसेस है जो कि हमने बनाए, मतलब यूजर के प्रोसेस है, ये सिस्टम के नहीं है बल्कि हमारे खुद के। ठीक है, तो ये जब कुछ चीजों के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, सर्विसेज के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, देन दे विल रिक्वेस्ट इन टर्म्स ऑफ द सिस्टम कॉल। ओके, समझ में आ रहा है आप लोग को? रिस्पॉन्ड मी। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Hello, am I audible? Hello. Yes, sir. Yes, sir.
एक्चुअली मेरा चार्जिंग खत्म हुई थी, 5% पे मैंने वापस अपने उसको प्लग इन किया और बटन दबाना भूल गया, तो वो ऑटोमेटिक स्लीप पर चला गया। ओके, हम लोग कहाँ थे, टाइम भी हो गया आप लोग का। ओके, तो आई होप आप लोग को समझा ये सिस्टम कॉल क्या है। सिस्टम कॉल इट एक्ट एज इंटरफेस और इट प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन द प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके सिस्टम, आपके प्रोसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कम्युनिकेट करवाने के लिए और आपस इनसे सर्विसेज को रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोग अपने सिस्टम कॉल का यूज करते हैं। ठीक है, लेट मी बस आपको मैं बता देता हूँ, बाद में हम लोग उसको पढ़ेंगे कल। दे आर जनरली अवेलेबल एज असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और क्या क्या लिखा है, सिस्टम कॉल कैन बी ग्रुप्ड इनटू मेजर 5 कैटेगरीज। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। System calls can be grouped into major 5 categories. And what are those categories? Process control, file management, device management, information maintenance, and communication. Okay, so these are the 5 major categories in which the system calls have been grouped. Okay, अब उसके अंदर आपको मैं खाली बस बता दूं कि ये आपके प्रोसेस कंट्रोल के रिगार्डिंग सिस्टम कॉल है। ठीक है, कौन कौन से है, एंड, अबॉर्ट, लोड, एग्जीक्यूट। यानी अगर कभी किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना है या किसी, अगर आपको प्रोसेस क्रिएट करना है, तो आप कैसे बोलोगे आपके आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को कि प्रोसेस क्रिएट हो जा, तो हो जाएगा? नहीं, वी नीड सम कमांड, वी नीड सम इंस्ट्रक्शन, वी नीड सम सिस्टम कॉल, जो कि सिस्टम को जाके ये बोले कि भाई अभी आपको प्रोसेस क्रिएट करना है। तो ये लैंग्वेज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम समझता है, दूसरी लैंग्वेज नहीं समझता। सो दीज आर द सिस्टम कॉल। ठीक है, so these are the these are the common system call: and, abort, load, execute, create process, terminate process, allocate memory and free memory, get process attributes and set process attributes. कुछ मैंने नीचे भी लिखा हूँ, ऐसे ही आपके और भी है जो कि फाइल मैनेजमेंट के रिलेटेड सिस्टम कॉल है, लाइक क्रिएट फाइल, डिलीट फाइल, open file, close file, read file, write file, reposition file. Okay, get file attributes, set file attributes. So these are the general system call. अब ये कोई explain करने वाली चीज नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखने वाली चीज। ठीक है, तो you need to remember at least 4 or 6 system call in order to write in the examination if this question asked. Okay, if this question is asked. Okay, then the next is, थोड़ा सा टाइम में ले रहा हूँ आपका, लेकिन कम से कम ये टॉपिक आपका हो जाएगा। तो नेक्स्ट इज डिवाइस मैनेजमेंट, रिक्वेस्ट डिवाइस, रिलीज डिवाइस। देखो, व्हेन यू डील विद द डिवाइस मैनेजमेंट, आपने आपने पेन ड्राइव लगाया, अब पेन ड्राइव आपने लगाया, तो लगाने के बाद में ये रिक्वेस्ट डिवाइस आपका काम करेगा। अगर आपको डिवाइस निकालना है, पेन ड्राइव अभी अगर आपको निकालना है, आप क्या करते हैं, सेफली रिमोट ड्राइव करते हैं। तो सेफली रिमोट ड्राइव इज नथिंग बट द GUI वर्जन। ओके, बट इट इज टेलिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट बाय डिवाइस को रिलीज कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से काम करते हैं। लॉजिकली अटैच एंड डिटैच डिवाइसेस, then read, write, and then get device attributes, set device attributes. You need to remember these system calls. Okay, next is information maintenance, get time or date, set time or date, get system data, set system data, get process, file और device attributes। तीन चीजें यहाँ पर, प्रोसेस का, फाइल का, डिवाइस का, एट्रीब्यूट्स का, उसके सबके एट्रीब्यूट्स, एंड सेट प्रोसेस, फाइल और डिवाइस एट्रीब्यूट्स। तो सबके एट्रीब्यूट्स सबके सेट के हम लोग क्यों करते हैं? देखो, कभी भी जो है ना, तो कोई भी आपका प्रोसेस है और उसके रिगार्डिंग अगर कोई एग्जाम्पल, आपके पास में कोई, आपने किसी को मेमोरी एलोकेट की है, किसी प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट की है या कहीं पर भी, तो उसके कुछ तो एट्रीब्यूट्स होते हैं। उसको अगर आपको यूज करना है, तो आप उसके एट्रीब्यूट्स कैसे यूज करेंगे? उसके एट्रीब्यूट्स पहले गेट करेंगे और फिर इसको यूज करेंगे, और यूज करके अगर आपको कुछ चेंजेस करना है, देन यू कैन सेट द एट्रीब्यूट्स आल्सो। ठीक है, वो सारी चीज इसमें आती है। उसके लास्ट में कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन में क्रिएट कम्युनिकेशन कनेक्शन, देन डिलीट कम्युनिकेशन, सेंड मैसेज, रिसीव मैसेज, ट्रांसफर स्टेटस मैसेज, अटैच डिटैच रिमोट डिवाइसेस,
तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं. सो ऑल दीज आर नथिंग बट द सिस्टम कॉल. यू नीड टू रिमेम्बर दी सिस्टम कॉल. मैंने कुछ बुक का कटिंग भी मैंने निकाल के रखा हूँ. सम ऑफ द मेथड विच आर यूज्ड इन फॉर दी सिस्टम कॉल इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो वो मैंने सारे यहाँ पे लिखा भी हूँ. जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ आपको मैं. एग्जाम्पल, एक सेकेंड. want to keep your annotations, discard. कहाँ बता रहा था मैं? प्रोसेस कंट्रोल में. अगर आपको प्रोसेस क्रिएट करना है तो आपको सी लैंग्वेज के अंदर फॉक मेथड यूज करना पड़ेगा. एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है. अगर आपको प्रोसेस क्रिएट करना है देन यू हैव टू यूज दिस फोक मेथड, FORK, ठीक है. सो इट विल क्रिएट अ न्यू प्रोसेस. ओके. तो ऐसे ही और भी मेथड्स है जो कि यूज होते हैं, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हूँ. बिकॉज हम लोग उसका काम पड़ेगा, आप लोग उसको यूज करना पड़ेगा. आपके पास में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है. अगर आपको फाइल क्रिएट करना है तो उसके लिए ये मेथड यूज करते हैं, दैट इज क्रिएट फाइल. अगर रीड करना है तो रीड फाइल, वगैरह वगैरह, ठीक है. तो आई थिंक यू बेटर नोज अबाउट द फाइल हैंडलिंग. तो वो चीजें आप लोग भी देख सकते हैं, ठीक है. So these all are about the operating system के system call. So system call basically क्या है? It is nothing but it provide the interface between process and operating system. तो प्रोसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कम्युनिकेट करवाने के लिए, उसमें इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए we have system calls. Okay, and the system calls have been categorized and grouped into 5 major categories. One is process control, second is file management, third is device management, fourth is information maintenance, and the last one is communication. Okay, so here we complete the topic. इसको कंप्लीट करना था एक्चुअली, इसके लिए हम लोगों ने किए. अब कल देखेंगे हम लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है. आज के लिए फिलहाल हम लोग अभी रुकते हैं यहीं पे. आई स्टॉप माय शेयरिंग, स्टॉप माय रिकॉर्डिंग ऑल्सो.